Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू PPSC सॉल्व पास पेपर 2012 फॉर द पोस्ट ऑफ तहसीलदार BA16 जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। तो ये जनाब 2012 का पेपर है, तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो है वो सॉल्व इसके जो ऑप्शन हैं तो वो भी जो है वो मेंशन किए हुए हैं। द सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1877 बाय सैयद अमीर अली। The Constitution of All India Muslim League was drafted by committee in 1907 headed by Maulana Muhammad Ali Johar. Which amendments were proposed by Quaid-e-Azam in Nehru Report 1928 to make it acceptable to Indian Muslims? The Muslims should be given 1/3 representation in the central legislature. For 10 years, the Muslims should be represented in Punjab and Bengal according to their population. Residuary power should be given to the province. ये है जी all of these. Question number 4 है, मौलाना मोहम्मद अली जोहर had started publishing his famous English newspaper Comrade in 1911 from Kolkata. Liaquat Ali Khan joined All India Muslim League as a member in 1923. What was the significance of 21st annual session of All India Muslim League? Allama Iqbal delivered Allahabad address. The British Indian government announced the partition of Bengal in 1905 because of administrative requirements. Quaid-e-Azam resigned from Indian National Congress due to non-cooperation movement. Which of the following leaders has convinced Quaid-e-Azam to join All India Muslim League? Maulana Muhammad Ali Johar. Pakistan National Movement was launched from England in 1933 by Chaudhry Rahmat Ali. The Central Part of Government of India Act 1935 was not enforced because required number of princely states declined to join the Indian Union. The founder of the Indian National Congress was A.O. Hume. The largest princely और ये 1985 के अंदर जो है वो हुई थी फॉर्म. The largest princely state by area at the time of partition was Kashmir. 77,000 square था मेरे ख्याल में, आई थिंक इसका स्क्वायर 77,000 square kilometer. Which of the following leaders helped Quaid-e-Azam in the preparation of his 14 points in 1929? Maulana Muhammad Ali Johar. Under Gandhi-Urban Pact of March 1931, it was decided that the Congress will call off its civil disobedience movement. The Government of India Act 1935 divided the country into 11 provinces. The provincial elections of 1935, All India Muslim League won largest number of seats in the United Provinces. The Indian Muslims observed Day of Deliverance from Resignation of Congress Ministers on 22 December 1939. ये है जी यौम निजात. चौधरी रहमत अली first used word Pakistan in his pamphlet No or Never in 1933. Identified the Secretary of State of India who led cabinet mission in 1946. Lord Pathy Lawrence. Mohtarama Fatima Jinnah joined All India Muslim League in 1939. Lahore Resolution of 23rd March 1940 was seconded from Sindh province by Abdullah Haroon. Congress launched Quit India movement against the British government in 1942. Gandhi-Urban talks were held in 1944 to discuss the CR formula prepared by Raj Gopal Acharya, who presided over the similar conference in 1945. Lord Wavell. After Saraga Khan, the next president of All India Muslim League was Raja Sahib of Mahmudabad. Hindus had launched Swadeshi movement. Swadeshi movement to boycott English-made goods in the wake of partition of Bengal 1905. The Pirpur report on the brutalities of Congress ministries 1937 was compiled by Raja Muhammad Mehdi. The British Indian Parliament passed Indian Independence Act on 18 July 1947. Who among the following leaders had translated the Lahore Resolution from English to Urdu on 23rd March 1940? Maulana Zafar Ali Khan. Quaid-e-Azam met M.K. Gandhi for the first time in 1916 at Lucknow. Identified the Viceroy who made August offer in 1940? Lord Lithgow.
Kanpur mass tragedy had taken place in 1913. Quaid-e-Azam surrendered the most cherished demand of Indian Muslims, for the separate electorate system under the Delhi Proposal 1927. Quaid-e-Azam joined All India Muslim League as a member in 1913. The 7th session of All India Muslim League held in Agra. The Politics is considered as the first book on the art of government. Identify the author. Aristotle. Thomas Cup is given the game of badminton. The Nobel Prize for the Peace is given in the city of Oslo. Which is the largest gland in the human body? Liver. Who is the founder of Scout movement? रॉबर्ट बेडन पॉवल, और ये 1922 के अंदर जो है वो फाउंडेड की हुई थी, और जेनेवा जो है वो इसका हेडक्वार्टर है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिकेम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज सर ज़फ़रुल्लाह खान। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्टेड ऑफ 15 मेंबर्स, 5 जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। द स्वेज़ कैनाल कनेक्ट्स द मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, और ये इजिप्ट में है, मिस्र। पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द 7th टाइम। ये 2012 की बात हो रही है जनाब, ये अपने जहन में रखनी है चीज़। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कर्व इन द फॉरेन करेंसी डीलिंग्स? द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज इन द ओपन मार्केट। तियार टास इज़ ए न्यूज़ एजेंसी रशिया। आरियाना इज़ एन एयरलाइन ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 is located in the Karakoram. Identify the highest non-operational award of Pakistan Armed Forces. Sitara Bisalat. Study or science of population is called demography. According to the recent report of which infection disease causes maximum number of casualties in the world? AIDS. The world's oldest surviving monarch is in Japan. OPEC largest oil producing country is Saudi Arabia. Pedagogy is a science of teaching और टीचिंग मेथड से रिलेटेड है। पेडागोगी इसका आंसर मैं नहीं लिख सका, ये टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग और टीचिंग पढ़ाने से रिलेटेड। यानी कि द मेन काज ऑफ अर्थक्वेक्स इज सडन कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस, कमिंग इनटू एक्टिविटी, कंट्रैक्शन ऑफ द सम डोरमेंट वोल्केनोज ड्यू टू इंटरनल हीट, समटाइम्स वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड एक्सपेंड्स ऑल ऑफ दीज। After USA, which is the second biggest arms seller in the world? Russia. First electronic digital computer was invented by J.B. Atanesov. Pinpoint the world's oldest democratic country, Great Britain. The highest literacy rate among SAARC countries is in Maldives. Identify the function of IMF to make foreign exchange resources available for those countries facing balance of payment difficulties. The world's largest island, Greenland. Among the SAARC countries, the higher per capita income is of Sri Lanka. Which international agency supervised Indus Basin Treaty 1960 between Pakistan and India? World Bank. Identify the longest glacier of Pakistan, Siachen. Warsak Dam has been built on river Kabul. The Shandur Pass at a height of 12,205 feet connects Chitral and Gilgit. According to a recent survey, the world's largest importer of the weapon is India. ये 2012 की बात हो रही है। ऑफ द वेरियस एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द ओल्डेस्ट वन इज यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन विच इज़ UPU. ऑन चाइना, रिसेंटली पब्लिश्ड बुक इज़ रिटन बाय हेनरी किसिंजर. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिखिज्म, होलीस्ट प्लेस गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर वाज लेड बाय हज़रत मियाँ मीर. कुरान मजीद किस सूरत में अल्लाह ताला के अहकामात सबसे ज़्यादा आए हैं? तो ये है जी सूरह अल-बकरा। कुरान मजीद की ये जो है वो रोमन के अंदर मैंने लिखा हुआ है, ये सारे आगे उर्दू के अंदर जो है वो थे पेपर के अंदर। कुरान मजीद की सबसे पहली नाजिल होने वाली मुकम्मल सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। इस्लाम की खुफिया तबलीग के दौरान तहरीक इस्लाम का मरकज़ किसका घर था? हज़रत अरकम मखरूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बैत अक़बा सानिया में कितने अफराद शामिल थे? 12। कुरान मजीद में किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है? हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हो, और ये नाम नहीं आया, उनकी तरफ इशारा किया गया है। मिसाक मदीना की खिलाफवर्जी सबसे पहले यहूदियों की किस कबीले ने की थी? बनु कैनका। कुरान मजीद की आखिरी वही के कातिब कौन थे? हज़रत अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान मजीद में अंबिया इकराम के नाम पर कितनी सूरतें हैं? 6। मुसलमानों ने पहली बहरी जंग किस खलीफा राशिद के दौर में लड़ी? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ग़ज़वा मोता किस सन हिजरी में हुआ? 8 हिजरी।
उम्मुल मसाकीन किसका लक़ब है? हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ज़कात की फ़र्ज़ियत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात, सदक़ात और जज़िया इकट्ठा करने का ज़िम्मेदार किसके ज़िम्मा किसके सुपुर्द किया? फरमाया हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो। मक्का से कितने फ़ासले पर गार सौर है? 5 मील। कुरान पाक में किस नबी का ज़िक्र सबसे ज़्यादा आया है या हुआ है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह का सिफ़ाती नाम अल बारी किस सिफ़त को ज़ाहिर करता है? हर चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला। इसराइल किस पैगंबर का लक़ब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस गज़वा में शिरकत की? गज़वा अबवा। सन 4 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु को अरबानी ज़बान सीखने की हिदायत की? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। कुरान मजीद को 30 पारों में किसने तकसीम किया? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। इस्लाम का पहला सरिया रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? सरिया ख़रार। ये मुझे कंफर्म नहीं है, कुछ जो है वो एक और सहाबी का नाम आ रहा था, कुछ एक जो मैंने सर्च किया है और एक के अंदर जो ऑप्शन था उसके अंदर ये आ रहा था। अब ये कंफर्म नहीं है, आपने बताना है कमेंट्स के अंदर। अज़ान में अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी मरतबा आते हैं? 6। नमाज में कोमा किसे कहते हैं? रुकू के बाद सीधा खड़े होने को। कुरान में किस चीज़ को ज़ुल्म अज़ीम कहा गया है? शिर्क को। तवाफ़ कदूम क्या है? बैतुल्लाह पहुँचने के बाद पहला तवाफ़। सलात कसूफ़ या किसूफ़ कब अदा की जाती है? चाँद गिरन के वक्त। और ये खिसूफ़ है और ये है किसूफ़ जो कि सूरज गिरन के वक्त जो पढ़ी जाती है। मज़हब के मानी क्या है? चलने का रास्ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बारे में फरमाया कि वो नबियों और शहीदों के साथ होगा? सच्चा मानतदार। सबसे ज़्यादा अहादीस किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। 5374। कुरैश ने कितने साल तक बनु हाशिम का समाजी मुकाता किया था? 3 साल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन सफ़र करना जो है पसंद फरमाया है? वो है जी बुध। तो ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर कोई मिस्टेक हो आप बता सकते हैं। और इसके अलावा जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि नायब तहसीलदार का जो पेपर है वो पेश करूँ, और जो तहसीलदार के लिए जो इंग्लिश का जो ख़ास तौर पे पोर्शन है तो उसकी हेल्प अगर जितनी हो सके तो वो करूँगा। उसके लिए कोई टिप्स हों या अगर इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कोई टेंसेस वगैरह डायरेक्ट इंटरेक्ट हो गया तो जो मुझसे हो सका इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद है ज़रूर उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियो के लिए, मज़ीद पास पेपर के लिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। और अपनी जो कमेंट्स के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। उसके अंदर किसी कोई मिस्टेक हो इसके अंदर, आपको वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।